lecturer in zoology, Government College, University, Hyderabad. In this lecture series on invertebrate diversity, today I would like to talk about phylum Acanthocephalan. Acanthocephalans are amazing parasitic animal found in the intestine of vertebrate such as fishes, mammals and birds, and these are invisible to common people and they are popular among the parasitologists. In this lecture, you will be able to learn introduction, examples, body form and function, reproductive organ, life cycle and phylogeny of Acanthocephalan. This lecture will help you to comprehend many things about the Acanthocephalan. Before look at this slide, the intestine, this is the intestine of a duck which is heavily infected with yellow worms. These yellow worms are adult of Acanthocephalan. You can see in diagram B. So this adult have thorny proboscis or head region, and this head region help in attachment with the intestine. So this proboscis, spiny headed proboscis, is the typical feature of this phylum. Acanthocephalan, it's a Greek word. Acantha means spine or thorn. Cephala means head. This is the head region. You can see in the figure number 2, and this is an head region, and they contain spines. So because of these spiny head, they are known as a spiny headed worms. So this is the common name of the Acanthocephalan. And the phylum is cosmopolitan. इसका मतलब ये है कि it found everywhere, means ये सारी दुनिया में पाया जाता है. And almost 1100 species are identified and described from the birds, fishes and mammals. And these Acanthocephalan are endoparasites. The adult live in vertebrates. Vertebrate means having backbone, like mammal, fishes, birds. And the baby are larvae of Acanthocephalan found in arthropods. या तो आर्थ्रोपोड्स के क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं या इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, तो डिपेंड अपॉन दिस स्पीशीज. सो ये अकेंथोसेफलान अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं. वन इज द इंटरमीडिएट होस्ट वेयर दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. सो ये इंटरमीडिएट होस्ट इनका क्रस्टेशियंस या इंसेक्ट होते हैं, मींस दीज आर इनवर्टिब्रेट्स. So most of the Acanthocephalan are less than 40 mm long. लेकिन एक Acanthocephalan है जिसका नाम है Macroacanthorhynchus heridensis. इनकी साइज जो है ना 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक है और कुछ जो है ना बहुत ज्यादा जायंट. So adult is elongated. This is the adult male worm. And it has the 3 parts. The anterior, इनका anterior ये शार्ट जो है ना proboscis region, and this one region is known as a neck region, and below that is from neck के नीचे जो है ना ये सारे बॉडी का हिस्सा जो है ना इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं. तो इनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, proboscis, neck and trunk. The proboscis, ये proboscis covered with these thorn, ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम thorn या spines कहते हैं, और ये रिकवर्ड स्पाइंस होते हैं और होस्ट के इंटेस्टाइन्स के साथ इनकी
इनको अटैच करने में हेल्प करते हैं। Another typical feature is that one के the body wall of acanthocephalan, look at this one, this is called tegumentum. Most parasite, ज्यादातर पैरासाइट में tegumentum होते हैं और tegumentum की ये स्पेशलिटी होती है कि it help them to weigh the parasitic life. And after proboscis there is a neck region, और नेक रीजन के नीचे ये सारी स्ट्रक्चर है जिसे हम प्रोबोसिस रिसेप्टिकल्स कहते हैं। तो प्रोबोसिस रिसेप्टिकल में ये प्रोबोसिस अंदर जा सकती है और ये बाहर भी आ सकती है। सो दिस प्रोबोसिस इज, यू कैन से, इट कैन बी इन्वर्टेड एंड एवर्टेड। नेक कंटेन, दिस नेक एरिया कंटेन लिमेंसी, और आज तक लिमेंसी का फंक्शन अननोन है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये हाइड्रोस्टैटिक एक प्रेशर डेवलप करने में, क्योंकि सीडोसिलोमेट्स हैं तो उनमें इनका प्रेशर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द अकेंथोसेफलन, उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ज्यादातर में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन जिनमें है तो इट कंटेन द पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया with the phlegm cells। तो excretory system का मतलब यह है कि they help in removing of the nitrogen waste। और nerve system, look at this structure, this is central ganglion, यहाँ जो brain लिखा हो ना कि ये जो this entire structure is proboscis receptacle, और यहाँ जो ये आपको नजर आ रही है ये brain या इनका central ganglion है, और इसके साथ जो है ना कुछ नर्व्स जो है ना मूव करती हैं। प्रोबोसिस में एक नर्व मूव करती है, दूसरी बॉडी में मूव करती है। और इस प्रोबोसिस यहाँ और इस लास्ट में जिसे हम बर्सा कहते हैं, दिस वन बर्सा कापुलेटरी ऑर्गन, इन दोनों प्रोबोसिस और बर्सा में सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और इन अकेंथोसेफलन में नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती, और इस टेगुमेंट में इस बॉडी वॉल के थ्रू जो है ना क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट से। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ इस टेगुमेंट में ग्लाइकोकैलेक्स एक कोटिंग होती है। ग्लाइकोकैलेक्स इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स बनाते हैं। और ग्लाइकोकैलेक्स का काम यह है कि होस्ट में जो एंजाइम्स होते हैं उनसे इनका बचाव करते हैं, इनका इम्यून को होस्ट के इम्यून के साथ लड़ने में इनकी जो है ना ये ग्लाइकोकैलेक्स हेल्प करती है। तो इट इज वेरी मच टिपिकल स्ट्रक्चर। अकेंथोसेफलन आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब मीन्स मेल और फीमेल अलग होते हैं। Look at this figure, this or female is always larger. This structure, you can say this entire structure, sorry, this is the female, और ये छोटा जो आपको नजर आ रहा है, the smaller is the male. So you can see from this picture the male is smaller than female। और कॉपुलेशन के दौरान जो मीन्स इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, तो स्पर्म्स जो है ना वो वेजिना के थ्रू ये सीलोम जो बॉडी कैविटी है, सीडोसीलोम फीमेल की में जाते हैं। और इनमें जैसे मैंने बताया कि दे आर डायोशियस, मीन्स इसमें सेक्स सेपरेट्स है। तो इसका मतलब ये इनमें जो फीमेल है, फीमेल में जो ऑर्गन, एक ओवरिन बॉल, दूसरी यूट्रिन बेल। यू कैन सी फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर हेयर, दिस वन इज द यूट्रिन बेल, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा ये यूटेरस स्ट्रक्चर है, ये फीमेल स्ट्रक्चर, और ये वेजाइना जो है ना ये फीमेल ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे कॉपुलेशन होती है, स्पर्म जो है ना सीडोसीलोम में जाएगा, सीडोसीलोम के बाद जो है ना वहां से जो है ना
एग प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा, वो ओवरिन बाल से लेकर यूट्रिन बेल में आएगा, एंड देन यूट्रिन बेल से यूटेरस में जाएगा, और यूटेरस से ये पास होकर जो है ना ये बाहर जाएगा। तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो हमेशा होती है वो इंटरनल होती है। तो मीन्स मेल पेनिट्रेट्स द फीमेल वेजिना एंड pour the sperm there. And मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दिस यू कैन सी दिस इज बिगर स्ट्रक्चर, ये आपको गोल स्ट्रक्चर, दीज आर द टेस्टिस। और टेस्टिस के अलावा इनमें वासा डिफरेंसा, सीमेंट ग्लैंड्स, एजाकुलेटरी डक्ट्स और स्मॉल पेनिस और बर्सा भी पाए जाते हैं, जो ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये मेल में पाए जाते हैं। तो इनका जो एम्ब्रियो होता है वो शेल्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज होने के बाद जब एम्ब्रियो पैदा होता है तो ये वेजिना के साथ फीसिस में, वर्टिब्रेट के होस्ट के फीसिस में आएगा, और इस जब वो उसके बाद जो है ना इंटरमीडिएट होस्ट कोई बीटल या कोई क्रस्टेशन उसे उनके फीसिस को ईट करेगी, तो इससे इसके साथ जो है ना उनकी बॉडी में जाएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ अकेंथोसेफलान, ये तीन इनके मेजर स्टेजेस हैं। एग्स के बाद एक को हम अकेंथर कहते हैं, दूसरे को अकेंथिला, एंड तीसरे को हम सिस्टाकेंथा कहते हैं। लुक एट दिस वन, दिस इज अकेंथर, अकेंथिला एंड सिस्टाकेंथा। सो इस लेक्चर में हम एक मैक्रो अकेंथोराइनकस हेरिजेनेसिस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी फीमेल ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज्यादा अंडे देती है, एंड दीज एग्स पास आउट, मीन्स दिस इज द पिग, मोस्टली इट फाउंड इन द पिग। सो ये इनका एडल्ट है, इनके इंटेस्टाइन में रहता है। तो व्हेन दिस एडल्ट ले एग्स, द एग्स जो है ना इनके फीसिस के साथ जमीन पे आएंगे। लुक, दिस इज एग्स, और देन इट इज टेकन बाय और ईटन बाय इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे काकरोच भी हो सकते हैं, गर्ब्स भी, मींस बीटल्स भी हो सकते हैं। तो नाउ उनकी बीटल के बॉडी में ये एग से लार्वा पैदा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अकेंथर कहते हैं। और ये खुद इंटेस्टाइन के साथ या सीलो में खुद को उसमें बरो करेगा, उसमें रहेगा, इट विल चेंज इनटू अकेंथिला, और अकेंथिला के बाद जो है ना ये चेंज हो जाएगा सिस्टाकेंथा में। जब सिस्टाकेंथा में जाएगा तो इस होस्ट को, मींस इस बीटल को या काकरोच को या तो पिग खाएगा या घास के साथ जो है पिग में आ जाएगी, और देन सिस्टाकेंथा डेवलप इनटू एडल्ट। ओके, तो ये जो है ना इनकी लाइफ साइकिल है। नाउ लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ अकेंथोसेफलान। फाइलोजेनी का मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर्स। तो ये इनके एंसेस्टर कहाँ किस से ताल्लुक रखते हैं, ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो आज तक ट्रेडिशनली ये अकेंथोसेफलान के 3 मेजर क्लासेस हैं, आर्कियो अकेंथोसेफलान, ईओ अकेंथोसेफला और पेलो अकेंथोसेफलान। लेकिन मॉलिक्यूलर स्टडी के मुताबिक जो है ना इनकी फाइलम स्टेटस जो है ना वो रियल नहीं है, और उस पर डिबेट है। और ये कहा जाता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द फाइलम रोटिफेरा। रोटिफेरा का एक क्लास है जिसे हम बीडेलॉइडा कहते हैं। तो इनका एक सिस्टर टेक्सान ग्रुप है। तो इनकी क्लासिफिकेशन एक डिबेटेड क्लासिफिकेशन है। इनकी फाइलोजेनी डिबेटेड फाइलोजेनी है। दिस इज द these are the questions that these I have taken from the lecture. So when you see this video for twice or thrice time, then you answer these one and send to me. And thank you very much. These are the reference that I have taken, all material taken from these books. Thank you very much for here.
And thanks for attention. Stay safe from the corona disease and disinformation.